Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that you are great, doing great. So students, today we are going to start our unit number 10, that is known as simple harmonic motion or simple harmonic motion and waves. So in this chapter, what are we going to study? We are going to study about what is simple harmonic motion, then what is damped harmonic motion, the damped motion, then what is wave motion, then we are going to study different kinds of waves, that is mechanical waves and some other waves, then what is ripple tank is an instrument that is used to find out the wave. We are going to study these things, but today what we are going to study is simple harmonic motion. What is simple harmonic motion? Simple harmonic motion is simple means, the simple means easiest thing. Motion means if a body moves, to and fro motion, motion about its mean position. What is harmonic? Motion is a normal motion, to and fro motion. Or what is harmonic? This means the body move about its mean position. Body move to and fro about its mean position. This is known as harmonic motion. What is simple harmonic motion? That a body moves to and fro. Motion is simply to and fro motion of a body is known as simple harmonic motion. But a body move along with its mean position. बॉडी मूव कर रही है टू एंड फ्रो, फिर अपनी मीन पोजीशन पर दोबारा आ रही है, फिर जा रही है, फिर वापस जा रही है. दिस टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. So students, what is oscillatory motion? What is oscillation? Oscillation is simply a body move around its body is moving, around moving body is with respect to vibratory motion or oscillatory motion. Oscillatory motion means vibratory motion. A body move कर रही है about its mean position, is known as oscillatory motion. Now what is vibration? What is time period? What is frequency? Relation between time period and frequency, displacement and amplitude. First of all, let's just understand these sum of types, then let's just continue. Okay, now first of all, what is vibration? Vibration क्या होता है? एक बॉडी मूव कर रही है. ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन सिंपली सेम थिंग. दिस इज़ फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पेन. इसको हम लोग ऐसे करते हैं. इसके अंदर एक स्प्रिंग है. उसको हम लोगों ने कंप्रेस किया. कंप्रेस किया, हम लोगों ने फोर्स लगाया. तो वो बॉडी वो मूव करेगा, उसमें वाइब्रेटरी मोशन है. फॉर एग्जांपल वैसे होगा नहीं. वाइब्रेट हुआ. फिर वो दोबारा खुल जाएगा, फिर हम यूँ छोड़ेंगे, दोबारा बंद हो जाएगा, फिर खुल जाएगा, इस तरह. दिस मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी. बॉडी मूव करी है उसी जगह में, चेंज नहीं करी है. और वापस उसी वक्त में आ जाएगी, उसी जगह में आ जाएगी. दैट इज़ वाइब्रेशन. व्हाट इज़ वाइब्रेशन? वाइब्रेशन इज़ द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन. मीन पोजीशन पे आएगी एक राउंड ट्रिप लगाकर. इस पोजीशन पर. बॉडी यहाँ से आ रही है, मीन ट्रिप पे अपनी एक पोजीशन पे आ रही है. दैट इज़ नोन एज वाइब्रेशन. वाइब्रेटरी मोशन सब ने देखी होगी, बॉडी किस तरह वाइब्रेट करती है. नाउ what is time period? Second is time period. As you know, the time period से you have been, मतलब नाम से ही पता चलता है. टाइम मतलब टाइम, पीरियड मतलब इन विच टाइम. हाउ मच टाइम, हाउ मच डज इट टेक. टाइम पीरियड मीन्स के द टाइम, वो टाइम ड्यूरिंग विच वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है. उस टाइम को उसको काउंट करें. दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड. उसको टी से डोनेट करते हैं, कैपिटल टी से. व्हाट इज़ वाइब्रेशन? अ कंप्लीट राउंड ट्रिप. बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेशन. एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम हैविंग टाइम ड्यूरिंग विच वाइब्रेशन फॉर बॉडी इज कम्प्लीटेड. दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? What is frequency basically? The frequency, the number of vibrations in per second. वाइब्रेशन टाइम पीरियड हो, टाइम तो होगा कितने टाइम में हो रहा है. वाइब्रेशन दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड. वाइब्रेशन क्या है? बॉडी मूव करिए अबाउट इट मीन पोजीशन. नाउ व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? बॉडी वाइब्रेट करिए विद इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड 2 सेकेंड कितना भी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 सेकेंड देखेंगे. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रहे हैं एक सेकेंड के अंदर. 1 सेकेंड के अंदर, 2 सेकेंड के अंदर, 3 सेकेंड. उन वाइब्रेशंस को काउंट करना, दैट इज़ नोन एज
frequency. What is frequency? The number of vibrations per second is known as frequency. ठीक है, it is represented by F. It is and the unit of frequency or vibration per second is cycle per second or hertz. ठीक है. Now what is displacement? Displacement means distance. ठीक है, नाम से ही पता चलता है. Distance means displacement. एक रास्ता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने का, ठीक है, यहाँ जाने का, और एक रास्ता है डायरेक्ट यहाँ से. तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एज कम्पेयर टू दिस. ठीक है, तो ये डिस्टेंस है एंड दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. यहाँ से यहाँ पहुँचना कम टाइम लगेगा, यहाँ से ज़्यादा. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं. होता है बेसिकली डिस्टेंस ही है. ओके, नाउ व्हाट इज एम्पलीट्यूड? What is amplitude? Amplitude is basically the maximum displacement of a body from its mean position. Maximum means ज़्यादा. ठीक है, बॉडी कवर कर रही है ज़्यादा डिस्टेंस. ठीक है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. ठीक है, तो उसको हम लोग एम्पलीट्यूड करते हैं. ये दिस इज़ ऑल्सो बेसिकली अ डिस्टेंस. बेसिकली डिस्टेंस ही है लेकिन ज़्यादा. एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज मैक्सिमम डिस्टेंस. ठीक है, नाउ आई गेस कि आप लोगों को ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक कि हम टॉपिक पे पढ़ेंगे क्या क्या. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे. इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन में फिर टू एंड फ्रो मोशन, फिर हम लोग मास अटैच टू द स्प्रिंग पढ़ेंगे, फिर बॉल एंड बॉल पढ़ेंगे. ठीक है, और फिर सिंपल पेंडुलम. ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हैं. एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सबको ही पता है कि बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. ठीक है, टू एंड फ्रो मूव कर रही है अबाउट इट मीन पोजीशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाउ व्हाट इज डैम्प्ड मोशन? डैम्पिंग मोशन क्या है? बॉडी व्हाट इज़ डैम्पिंग? फॉर एग्जाम्पल दिस. ठीक है, एक बॉडी मूव कर रही है, इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, एक टाइम आता है हिलता और ऐसा होता है कि वो उसका एम्पलीट्यूड हल्का होना शुरू हो जाता है और एक टाइम में वो रुक जाता है. ठीक है, एक टाइम में आकर वो रुक जाता है. ठीक है, इसको डैम्प्ड मोशन कहते हैं. डैम्पिंग क्या होती है कि जैसे कोई झूला दे रहा है. झूला पहले तो तेज़ होता है, जब कोई छोड़ दे, ठीक है, फोर्स लगाने छोड़ दे तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक है वो हल्का होता है और एक टाइम आता है कि वो रुक जाता है. ठीक है, दैट इज़ डैम्पिंग. बॉडी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, टाइम के गुजरने के साथ साथ. वेव मोशन क्या होती है? क्रस्ट एंड ट्रफ. वेव में हम क्या पढ़ते हैं? क्रस्ट एंड ट्रफ. अपर पार्ट क्रस्ट, लोअर पार्ट ट्रफ. ठीक है, डिफरेंट क्रस्ट एंड ट्रफ मिलकर क्या बनाते हैं? वेव. ठीक है, बॉडी मूव करती है, वेव मोशन. ठीक है, बॉडी डिफरेंट टाइप्स में की तरह मूव करती है. हम मीडियम चाहिए होता है, मीडियम नहीं चाहिए होता है, ये हम लोग नेक्स्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ इसमें फिर हम रैपल टैंक भी यूज़ करेंगे. मैकेनिकल वेव्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? एक कुछ में मीडियम चाहिए होता है, कुछ में नहीं. किस तरह से मीडियम चाहिए होता है, कैसे नहीं चाहिए होता, किस तरह से मीडियम. एक सनलाइट होता है मीडियम, किस तरह, मतलब इस तरह डिफरेंट टाइप्स आगे पढ़ेंगे. व्हाट इज़ रैपल टैंक? रैपल टैंक को भी हम डिस्कस करेंगे. ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास. सो लेट्स जस्ट बिगिन. व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ बेसिकली अ टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, जो मैंने बताया. व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, और वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन. बॉडी मूव करिए अबाउट इट्स मीन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन. ठीक है, बॉडी मूव करिए है अपने मीन पोजीशन पे. वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी एक ही बात है. टू एंड मोशन, फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. और अ बॉडी मूव इट्स मीन पोजीशन. ठीक है, वाइब्रेट करिए. ठीक है, व्हेन अ नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. एक नेट फोर्स है, व्हेन अ नेट फोर्स, ठीक है, एक बॉडी है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं. झूला है, कुछ भी है, इस पर हम फोर्स लगाएंगे. ये इसका मीन पोजीशन, इस पर हमने फोर्स लगाया, इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें फोर्स जो होगा स्टोर होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, हमने यहाँ फोर्स लगाया और यहाँ पे हमने फोर्स लगाना छोड़ दिया. ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. ठीक है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाना छोड़ दिया, इसमें बॉडी में सेव हो गई क्या? फोर्स. ठीक है, जब हमने इसको छोड़ेंगे क्या होगा? बॉडी दोबारा जो होगा नीचे आएगा. ठीक है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया तो इंक्रीज़, हमने ग्रेटर अमाउंट में फोर्स दिया, यहाँ इंक्रीज़ होगा. वापस आएगा डिक्रीज़, मीन पोजीशन पे आते हैं के लिए डिक्रीज. जब यहाँ से बॉडी दोबारा यहाँ जाएगा मीन पोजीशन से बी पॉइंट पर, तो फिर क्या होगा? दोबारा इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर दोबारा उसको फोर्स लगेगी. नाउ डेफिनेशन क्या बात बता रही है? व्हेन अ नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. कि बॉडी जो है प्रोपोर्शनल है, फोर्स जो है प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है, फोर्स लगेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा ही होगा. ठीक है, डिस्टेंस भी होगा.
फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लग रहा है तो जाहिर ही बात है डिस्प्लेसमेंट भी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन होगा तो जाहिर है वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। एंड इज़ डायरेक्टली टूवर्ड इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। इसमें क्या है, बॉडी मूव कर रही है, सिंपल सी बात है, इसमें यही है, बॉडी मूव कर रही है अलॉन्ग विथ इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। फोर्स लग रही है बॉडी पर, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स हो रही है, फिर वो वापस अपनी मीन पोजीशन से आते हुए टू एंड फ्रो मूव करेगा। दिस इज सिंपली हार्मोनिक मोशन, ठीक है। फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पीरियोडिक मोशन हमारे पास क्या होता है, वो मोशन कि बॉडी रिपीट कर रही है, ठीक है। व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन, बॉडी रिपीट कर रही है, इधर आ रही है, फिर जा रही है, फिर मीन पोजीशन पे आ रही है, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे जा रही है, फिर पीक पे जा रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मीन्स बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है itself in an equal interval of time, ठीक है। the motion of body repeat itself in an equal interval of time is known as periodic motion। इस पर जितना टाइम लग रहा है इस पर दोबारा वही आएगा, उस पर उतना ही टाइम लगेगा, यानी कि टाइम से ही सेम ही रहेगा। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं किसकी, पेंडुलम की। पेंडुलम तो सबने देखा होगा, ऐसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ पेंडुलम, ठीक है। बॉडी मूव करिए ट्रू एंड फ्रो, ट्रू एंड फ्रो, ट्रू एंड फ्रो, दिस इज़ पेंडुलम मोशन, ठीक है। इसमें लिख लिया, फिर हम एक मेटालिक स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है, या हम मास अटैच टू द स्प्रिंग ले लेंगे, स्प्रिंग को भी हम कॉन्ट्रैक्ट करें, छोड़ें, रिलीज़ करें, दैट इज़ ऑल्सो अ मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। टी को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड के लिए, एफ को फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है। अच्छा, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि हम ऑसिलेटरी टॉपिक पढ़े हैं। फिर हम कह रहे हैं द बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है, अबाउट अ बॉडी टू इन अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, ठीक है। दिस इज नाउ व्हाट इज द एग्जाम्पल, the motion of simple pendulum, the motion of wires of sitar, ठीक है, violin, ठीक है, the motion of body attached to the elastic spring are the examples of vibratory motion, ठीक है। now let's just begin कि हमारे पास होता क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, ठीक है, स्टडी करते हैं इसको। अच्छा जी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यही है कि बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन दूसरी इसकी क्या है, वो तो ऑसिलेटरी मोशन था, ठीक है। नाउ व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, द मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि ए, इसको हम कहें लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, कि ए एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें ए है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और नेगेटिव साइन भी है, ठीक है। नेगेटिव साइन इसमें हमें क्या बता रहे हैं, नेगेटिव साइन बता रहे हैं कि बॉडी ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड द मीन पोजीशन, कुछ भी हो जाए बॉडी ने अपनी मीन पोजीशन पर आना ही है, ठीक है। सी दिस इज़ द बॉडी, ठीक है, बॉडी पे फोर्स लग रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट है, फिर यहाँ पर आएगी तो ये डिक्रीज़ होगा, फिर यहाँ आएगी यहाँ पर फिर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, ठीक है, पीक पॉइंट्स हैं, ये मिनिमम पॉइंट्स हैं जब ये नीचे आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगा जब फोर्स लगेगा, जब एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ अ बॉडी, एंड नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन पर आता है, ठीक है। कुछ भी हो जाए बॉडी डिक्रीज़ होता है, आफ्टर इंक्रीज़ वो डिक्रीज़ आता है, और इंक्रीज़ के बाद डिक्रीज़ आता है, ठीक है। ना इसमें हम लोग थ्री चीज़ों को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ मास अटैच टू द स्प्रिंग, ठीक है, बॉल एंड बॉल, ठीक है, बॉब अटैच टू द स्प्रिंग, ठीक है। इसमें क्या है, एक मास को ले लेंगे ऐसे और उसको स्प्रिंग के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, उसको करना है। उसके बाद क्या है, एक बॉल ले लेंगे, कोई भी आइसक्रीम बॉल या फ्रूट बॉल, कुछ बॉल ले लेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग एक बॉल ले लेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे कि उसकी मोशन कैसे हो रही है। फिर हम एक बॉब ले लेंगे या कोई भी चीज़ ले लेंगे जिसको हम एक ठीक है किसी के साथ स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, पेंडुलम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तीनों का एक ही टाइप है, तीनों का एक ही तरीका है, ठीक है, कि क्या होगा, बॉडी मूव करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी, ठीक है, ठीक है, किस तरह से, अबाउट इट मीन्स पोजीशन,
ठीक है, सिंपली यही चीज़ें, एक बॉडी मूव कर रही है, बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है, इसको हम सिंपल हार्मोनिक, इन तीनों चीज़ों में यही है, ठीक है। मास है, फॉर एग्जांपल ये एक मास है, इसको हमने स्प्रिंग ले लिया, इसके साथ अटैच कर लिया, ये मीन पोजीशन है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, फोर्स अप्लाई की, फॉर एग्जांपल फोर्स अप्लाई की तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, खुल जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा अपने, ये इसका मीन पोजीशन, फॉर एग्जांपल ये इस तरह पड़ा है, हमने फोर्स लगाया, रिस्टोरिंग फोर्स इसमें जमा हुई, यहाँ से इसने इतना डिस्प्लेस किया, ठीक है, और ये इसका पॉइंट है, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। फोर्स हो गई, क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग, तो हम इसके क्या करेंगे, फोर्स इज एज वी नो दैट, ये फोर्स लगेगा तो पोजीशन भी जो है, डिस्टेंस भी कवर होगा, तो हम कहेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मास अटैच टू द स्प्रिंग में क्या कहेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बॉडी ने क्या कर लिया, डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो फोर्स लगाया इसमें फोर्स स्टोर हो गया, फोर्स स्टोर हो गया। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट 8 पे आ गया, आपने इसको क्या किया, मास को छोड़ दिया। आप मास को छोड़ेंगे तो क्या होगा, बॉडी जो होगी दोबारा से अपनी मीन पोजीशन पर वापस जाएगी, ठीक है। क्या है ये, सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज़ वाइब्रेटरी मोशन, दैट इज़ ऑसिलेशन, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं मास अटैच टू द स्प्रिंग, ठीक है। बॉडी यहाँ पर आ गई, फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ से मीन पोजीशन के बाद गुजरना, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जमा है, ठीक है। यहाँ पे आने पर उसकी फोर्स खत्म नहीं हो जाएगी, फिर क्या होगा, मीन पोजीशन पे आएगी, 1 सेकंड के लिए रुकेगी, पता नहीं चलता, लेकिन वो रुकती है, उसके बाद दोबारा इस साइड में जाएगी, ठीक है, तो इस साइड में जाएगी, फिर डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, जाएगी तो फिर स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, व्हेन इट इज़ अटैच टू द मास, ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रेचिंग किया, स्टोर हो गई फोर्स, जब फोर्स स्टोर हो गई, रिस्टोरिंग फोर्स, तो फिर वो वापस आएगी। यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों ने इसको फोर्स दी, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई, जब हम लोग इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया, इंक्रीज़ हो गई, जब छोड़ेंगे तो यहाँ पर वापस आएगी तो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पर डिक्रीज़ आएगी, यहाँ पर मीन पोजीशन पे आने के बाद दोबारा जब वो इस पोजीशन पे जाएगी, ठीक है, इस पोजीशन पे जाएगी तो वो दोबारा इंक्रीज़ हो जाएगी, फोर्स दोबारा इंक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ पे वापस आते डिक्रीज़ होगी, मीन पोजीशन पे आएगी, फिर यहाँ पर जाते जाते दोबारा डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर क्या होगा, इसमें हम लोग देख रहे हैं फोर्स लगी, ठीक है, मास पर लगी, एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ भी होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन, जितना फोर्स लगेगा उतना एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगा, और जितनी कम फोर्स लगेगी उतनी एक्सेलरेशन कम होगी, ठीक है ना। अगर इसमें जो एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, जहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल ये एक्सेलरेशन, ये मैक्सिमम यहाँ पर है, ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पर जो होगी मिनिमम होगी। यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन मिनिमम है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे कि सिंपल पेंडुलम में कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम लोगों ने फोर्स लगाया, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्टेंस जो होगी वो उसने किया, ठीक है, कवर किया। नाउ फिर हम क्या करेंगे, कि क्या है, के इज़ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, मास अटैच, के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, वो लगा देंगे, एक्स इसी तरह आ जाएगा। कि हम लोग को बताता है कि बॉडी कितनी स्ट्रेच हुई, बॉडी में कितनी स्ट्रेचिंगनेस है, ठीक है, बॉडी कितना स्ट्रेच हो सकता है, कितना बढ़ सकता है, ठीक है, वो एबिलिटी शो करता है कि हमारे पास पेंडुलम कांस्टेंट, सॉरी मास अटैच टू स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रेचनेस दिखा रहा है कि कितना स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच हो सकता है। नेगेटिव साइन क्या कर बताता है हमें, कि नेगेटिव साइन ये बताता है कि बॉडी मूव करता है, जब वो स्ट्रेच हो जाता है उसके बाद बॉडी अपनी मीन पोजीशन पर वापस आता है, नेगेटिव पॉइंट हमें ये शो करता है, ठीक है ना। बॉल हमने ले लिया एक, उसमें हमने बॉल डाल दिया, उसको हम लोगों ने मूव किया, फॉर एग्जांपल ये बॉल है, इसमें बॉल है, ठीक है, मीन पोजीशन पे, उसको हमने मूव किया, फोर्स लगी, रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर जमा हुई, यहाँ पर बॉडी आ गई मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है। बॉल यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, स्टोर फोर्स जमा हो गई, दोबारा बॉडी आएगी, ठीक है। यहाँ पर इसका डिक्रीज़ हो जाएगा फोर्स, ठीक है, यहाँ डिक्रीज़ होगा तो ये इसके अपने पॉइंट पे आ जाएगी, ये इसका पीक पॉइंट, ये इसका पीक पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है, ये इसका मीन पॉइंट है, यहाँ पे आएगी, मीन पॉइंट पे आएगी, वापस इधर जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से आएगी, इधर इनर्शिया प्रोड्यूस होगा। इनर्शिया क्या है कि बॉडी जो है उसकी मोशन को रिटेन करती है इनर्शिया, ठीक है। एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी इनर्शिया में, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो हर टाइम मूव करेगी। आप फोर्स दोगे, जितना फोर्स, आपकी बॉडी या मतलब फोर्स पे अप्लाई करता है, डिपेंड करता है, आप जितना फोर्स दोगे उतनी देर तक वो जो होगी ट्रू एंड फोर मोशन देगी। आप ज़्यादा फोर्स दोगे वो ज़्यादा टाइम मूव करेगी, आप कम मोशन दोगे वो कम फोर्स दोगे तो कम मोशन करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक झूला है, आपने उसको झूला बहुत तेज़ स्पीड से आप लगाते जा रहे हो, फोर्स लगाते जा रहे हो, ट्रू एंड फ्रो मोशन देता जा रहा है झूला, ठीक है। स्विंग सब ने
देखे होंगे झूले, ठीक है। एक टाइम आएगा आपने छोड़ दिया फोर्स अप्लाई करना, आपने छोड़ दिया तो वो मूव तो कर रहा है 2 and 4 कर रहे आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा कि वो झूला रुक जाएगा, क्योंकि फ़ोर्स जो थी रिस्टोरिंग फोर्स वो एक टाइम होता है, एक हद होती है, उस तक वो जो होती है फोर्स जो होती है रिस्टोर हुई यूज़ होती है। जब वो फोर्स ख़त्म हो जाती है तो झूला खुद ब खुद रुक जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या है कि फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एज वी नो दैट फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। फोर्स इंक्रीज़ होगी इंक्रीज़ होगी एट मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन पे क्या होगी, फोर्स यहाँ से हमने इंक्रीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन एट पीक पोजीशन इंक्रीज़, यहाँ पर जो होगी इंक्रीज़ होगी एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर मीन पोजीशन पे क्या होगी, एक्सेलरेशन 0, तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, यहाँ पर डिक्रीज़। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पेंडुलम में भी सेम यही केस है, ठीक है। सेम यही जो बॉब के साथ हुआ है या बॉल के साथ हुआ है इन द बॉल, एंड वही जो मास के साथ हुआ है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं थी, ठीक है। फोर्स की बात है, एक्सेलरेशन की बात है, वेलोसिटी की बात है, डिस्प्लेसमेंट की बात है, स्प्रिंग कांस्टेंट की बात है, ठीक है। और इसकी जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा उसमें आपके बुक में आप उसको सॉल्व करें, आप उसको देखें, बहुत आसान है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, एक एक दो लाइनों की हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गया। चलें, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।